Hello students, today I am going to discuss with you the topic of class 11th, Introduction to Problem Solving. Okay, so in this topic I will tell you how computer programmer use a technique or steps to solve a particular problem. So in problem solving, computer programmer are problem solvers. To solve a problem on a computer, you must know how to represent the information describing the problem. And second thing, determine the steps to transform the information from one representation into another. Okay, so in this we have to follow some steps. So let's we discuss the steps with you. So steps for problem solving are: first, analyzing the problem, developing an algorithm, then coding, and fourth and final is testing and debugging. So these are the four steps to solve a particular problem. So I am telling you one by one about these four steps. So students, key steps required for solving a problem. Number one, analyzing the problem. By analyzing a problem, we would be able to figure out what are the inputs that our program should accept and the output that it should produce. So it is important to clearly understand a problem before we begin to find the solution for it. Okay. And in the next step, we will developing an algorithm. Developing an algorithm, it is an essential part of the problem. So before writing a program code for a given problem, programmer must know the exact steps which when followed to accomplish the task. Okay. The solution जो represent होगा वो किस में होगा? Natural language में. Natural language में simple English statements में. And this is called algorithm. And students, remember one thing. For a given problem, more than one algorithm is possible, and we have to select the most suitable solution for that. Okay, means कि एक प्रोग्राम को लिखने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन हम वही मेथड यूज करेंगे जो कि ज़्यादा suitable होगा उसके लिए. Okay, अब थर्ड स्टेप है आपका कोडिंग, कि अभी आपने जो एल्गोरिथम लिखी वो एल्गोरिथम क्या थी? वो एल्गोरिथम आपकी नेचुरल लैंग्वेज में थी. नेचुरल लैंग्वेज मतलब कंप्यूटर को नेचुरल लैंग्वेज समझ में नहीं आती. कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड द हाई लेवल लैंग्वेज लाइक C++ और जावा. ओके, so after writing the algorithm, now convert the algorithm into the format which can be understood by the computer to generate the desired solution. Or in other words, we can say that कि convert the algorithm into the formal language which can be understood by the computer. और वो जो formal language होगी वो कोई भी हो सकती है, either Python, C++ और Java. So आपने जो इंग्लिश स्टेटमेंट्स लिखी उन इंग्लिश स्टेटमेंट्स को फिर पर्टिकुलर उस लैंग्वेज के सिंटेक्स में लिखना क्या कहलाता है? कोडिंग कहलाता है. ओके, फोर्थ इज टेस्टिंग एंड डीबगिंग. सो टेस्टिंग एंड डीबगिंग क्या होती है कि प्रोग्राम क्रिएटेड शुड बी टेस्टेड ऑन वेरियस पैरामीटर्स. दिस इज टू एंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर मीट्स all the business and technical requirements and works as expected. The errors or defects found in the testing phases are debugged or rectified and the program is again tested. अब इसमें क्या होगा? आपने प्रोग्राम में पहले प्रोग्राम प्रॉब्लम को समझा, प्रॉब्लम में आपने ये पहले डिसाइड किया कि क्या इनपुट चाहिए, क्या प्रोसेसिंग होनी चाहिए और क्या आउटपुट आएगा. After that you have written the exact steps for to solve the particular problem. After writing the steps in a simple English statements or in a natural language, then the third step you have to perform the coding. Coding means कि आपने क्या करा? उस algorithm को कन्वर्ट करा पर्टिकुलर डिजायर लैंग्वेज में, जो भी आप कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखना चाहते हैं. आफ्टर दैट व्हेन यू रन द प्रोग्राम, तो सम एरर्स आर कमिंग, और उन एरर्स को क्या बोलते हैं? उन एरर्स को हम बग्स बोलते हैं, और उन बग्स को करेक्ट करना, रेक्टिफाई करना, उसको हम क्या बोलते हैं? डीबगिंग बोलते हैं. ओके, सो वंस द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हैज बीन डेवलप्ड, tested and delivered to the user, still problems in terms of functioning can come up and need to be resolved from time to time.
तो जो मेंटेनेंस होती है उस सॉल्यूशन की हमें क्या करनी पड़ती है, हमें इन्वॉल्व करती है फिक्सिंग द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द यूजर। तो हमें क्या करना होता है, जब भी हम किसी से सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं तो उसके मेंटेनेंस चार्जेस भी हम देते हैं। तो मेंटेनेंस चार्जेस मतलब कि आपको टाइम टू टाइम अगर कुछ भी आपको नया कुछ ऐड कराना हो या कुछ आपको चेंज कराना है एग्जिस्टिंग में, तो आप उससे क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ भी चेंजेस करवा सकते हैं। ओके, सो ये पार्ट होते हैं आपके 4 पार्ट्स किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट। Now while writing an algorithm, it is required to clearly identify the following. As I told you earlier, कि you require to clearly identify what input is needed, what will be the process and what will be the output. Okay, so this is called IPO cycle. So writing an algorithm is mostly considered as a first step to programming. Okay, so what input is needed, what should be the processing and what will be the output, these are the most important part of any problem. Okay, so जब भी आपको प्रॉब्लम कोई दी जाएगी तो सबसे पहले आपको उसमें ये देखना होगा कि इनपुट क्या लेना है, कितने इनपुट होंगे, प्रोसेसिंग क्या होगी, और फिर जो प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट होगा वो हमारा क्या होगा, उस प्रोसेस से वो रिजल्ट हमें मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा। दीज ऑल थिंग्स कम इनटू द IPO साइकिल। ओके, आफ्टर दैट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं गुड एल्गोरिथम के क्या होते हैं, पहला होता है प्रिसीजन। प्रिसीजन मतलब कि स्टेप्स आर प्रिसाइजली स्टेटेड और डिफाइंड, मतलब एक्यूरेटली स्टेट होने चाहिए जो आपके स्टेप्स होने चाहिए। उसके बाद यूनिकनेस होनी चाहिए। यूनिकनेस मतलब कि जो रिजल्ट हो हर स्टेप का वो यूनिकली डिफाइंड हो और वो डिपेंड किस पे करे, इनपुट पे and the result of the preceding steps. Okay, then finiteness. Finiteness मतलब it always stops after a finite number of steps. कि जैसे आपने कोई एग्जाम्पल लिया, इफ यू वांट टू मेक अ कप ऑफ टी, तो उसमें एक फिक्स्ड स्टेप है कि फर्स्ट आपके इनपुट क्या हो गया, इनपुट हो गया आपने का टी लीव्स, वाटर, शुगर एंड मिल्क। ओके, प्रोसेसिंग क्या हुई कि आपने सब कंटेंट, सब मटेरियल, सब इंग्रेडिएंट्स लेकर उसको क्या कर दिया, बॉइलिंग कर दिया। दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। नाउ आउटपुट क्या हुआ कि रेडी कप ऑफ टी इज द आउटपुट। सो इसमें क्या हुए, आपने कुछ 4 या 5 स्टेप फॉलो करे, तो ये क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, ठीक है, कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स हो गए। अब इनपुट यानी कि आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ इनपुट यूजर से लेना पड़ता है और वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है आउटपुट को। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स टू राइट अ गुड एल्गोरिथम। ओके, आफ्टर दैट we are using 2 common methods to represent an algorithm. First a flowchart and second is pseudocode. तो flowchart क्या होता है, flowchart is the pictorial representation of an algorithm. Okay, और इसमें हम क्या करते हैं, pictorial representation में हम ये symbols use करते हैं। वो symbols क्या है, like first is the oval. ओवल क्या है, ये टर्मिनेटर सिंबल इसको बोलते हैं, ये स्टार्ट और एंड के लिए यूज किया जाता है। देन है प्रोसेस। प्रोसेस के लिए हम जो यूज करेंगे ये रेक्टेंगल बॉक्स यूज करेंगे और इस रेक्टेंगल को हम क्या बोलते हैं, एक्शन बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें कि हम कुछ ऑपरेशंस करेंगे, लाइक प्रोसेसिंग का टास्क करेंगे। फॉर डिसीजन मेकिंग वी आर यूजिंग द डिसीजन और ब्रांचिंग पॉइंट। ओके, और ये डायमंड शेप में होता है जिसमें कि हम क्वेश्चन रेज कर सकते हैं जिसका हमें आंसर येस, नो या ट्रू फॉल्स में मिलता है। ओके, देन फिर हम इनपुट आउटपुट के लिए यूज करते हैं पैरेललोग्राम, जिसको हम डेटा सिंबल बोलते हैं, ठीक है, जिसमें कि हम इनपुट और आउटपुट करा सकते हैं। देन वी यूज एरोज। एरोज क्या करेंगे, जो भी हमने यहाँ पर ये सिंबल्स लिए हैं इनको आपस में कनेक्ट किसके थ्रू किया जाएगा, एरोज के थ्रू किया जाएगा, जिसको क्या बोला जाता है, कनेक्टर्स बोला जाता है। ओके, आफ्टर दैट अब आपका जो फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है वो 3 टाइप्स का होता है, यानी कि जो आप फ्लो चार्ट बनाएंगे या जो आप सूडो कोड लिखेंगे वो 3 टाइप्स के होंगे। फर्स्ट इज द सीक्वेंशियल, सेकेंड इज द सिलेक्शन एंड थर्ड इज द आइट्रेशन। So first I am telling you sequential construct. Sequential flow control क्या होता है, इस प्रोग्राम में, in this the program are executed in a sequential order और in a linear fashion. Means कि आपका क्या होगा, input होगा, प्रोसेस होगा, आउटपुट, इसमें कोई भी आपकी डिसीजन मेकिंग
नहीं होगी। देन आता है सिलेक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें आप यूज करते हैं कंडीशन टू डिसाइड विच सेट ऑफ स्टेटमेंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड बिटवीन टू ऑल्टरनेटिव सेट ऑफ। सो इन सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट और सिलेक्शन फ्लो कंट्रोल में हम क्या करेंगे, ये कंडीशन को यूज करता है कि आपने कोई कंडीशन दी, तो देन वो कंडीशन में क्या होगा, या तो वो कंडीशन फुलफिल होगी या कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। तो इट यूजेस अ कंडीशन टू डिसाइड विच सेट ऑफ स्टेटमेंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड बिटवीन टू ऑल्टरनेटिव सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। ओके, नाउ थर्ड इज द आइट्रेशन। आइट्रेशन क्या होता है कि लूप मतलब कि आपको रिपीट करना है किसी भी टास्क को। तो व्हेन अ सर्टेन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आर रिपीटेड फॉर अ फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा आइट्रेशन कंस्ट्रक्ट होता है। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको ये तीन तरह के फ्लो ऑफ कंट्रोल सीखने होते हैं। फर्स्ट इज द सिक्वेंशियल, देन सिलेक्शन, देन आइट्रेशन। ओके, सो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी केवल सिक्वेंशियल फ्लो कंट्रोल। ओके, और सिलेक्शन और आइट्रेशन कंस्ट्रक्ट के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। ओके, अब आती है बात सूडो कोड की। सूडो कोड क्या होता है? सूडो मीन्स नॉट रियल और सूडो कोड मीन्स नॉट रियल कोड। तो सूडो कोड क्या है? सूडो कोड एक आर्टिफिशियल और इनफॉर्मल लैंग्वेज है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्लो चार्ट जो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम होता है, इसी तरह से सूडो कोड जो है वो भी एक एल्गोरिथम लिखने का ही टाइप है, बट इसमें जो एल्गोरिथम हम डेवलप करेंगे वो कैसी होगी? टेक्स्ट बेस्ड होगी। फ्लो चार्ट हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम होता है, वेयर एज सूडो कोड जो होता है इट इज अ टेक्स्ट बेस्ड डिटेल डिजाइन टूल। ओके, और इसमें कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं होता। सूडो कोड जो भी आप लिखते हैं उसमें कोई आपका रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता, बट उसमें हम कुछ सिंबल्स, हम उसमें कुछ कीवर्ड्स यूज करते हैं। और जो कीवर्ड यूज होते हैं हमारे फ्रिक्वेंटली वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि इनपुट, कंप्यूट, प्रिंट, इंक्रीमेंट, इफ एल्स, व्हाइल, ट्रू फॉल्स एक्सेट्रा। ओके, सो सूडो कोड हमारा टेक्स्ट बेस्ड डिटेल डिजाइन टूल है। इसमें कोई भी सेट ऑफ रूल्स नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं होता सूडो कोड को लिखने का, बट इसमें हम कुछ कीवर्ड्स यूज करते हैं। कौन कौन से, वो मैंने अभी आपको बताए। इन कीवर्ड्स की हेल्प से हम सूडो कोड लिखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया है। इस प्रोग्राम में मैंने फ्लो चार्ट भी दिखाया है और सूडो कोड भी दिखाया है। तो देखते हैं कि इसमें क्या किया है कि इफ आई वांट टू फाइंड द एडिशन ऑफ टू नंबर, सो पहले हम फ्लो चार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। नाउ यू कैन सी इन दिस फ्लो चार्ट, फर्स्ट यू विल स्टार्ट, और स्टार्ट आपने किस में किया? टर्मिनेटर में। आफ्टर दैट टर्मिनेटर सिंबल के बाद आपने क्या कराना है? अब आपको पता है कि एडिशन चाहिए दो नंबर्स का। इट मीन्स यू नीड टू इनपुट्स फ्रॉम द यूजर। तो यूजर क्या करेगा? दो इनपुट लेगा। तो दो इनपुट आपने लिए। अभी आपने देखा कि पैरेललोग्राम आपने लिए हैं किसके लिए? इनपुट के लिए, क्योंकि इनपुट और आउटपुट हम किस सिंबल में लेते हैं? पैरेललोग्राम में लेते हैं। ओके, सो आपने रीड करवाया फर्स्ट नंबर, देन सेकंड नंबर रीड करवाया। अब आता है प्रोसेसिंग वाला पार्ट। तो फर्स्ट आपका इनपुट प्रोसेस हो, इनपुट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। इनपुट के बाद देन प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या हुई कि आपने दोनों नंबर्स को ऐड कर दिया और उसको स्टोर करा दिया थर्ड वेरिएबल में। ओके, एंड देन यू हैव टू प्रिंट द रिजल्ट। तो आपने यहां पर क्या किया? प्रिंट एस कर दिया। और अब आपका क्या हो गया? टास्क कंप्लीट हो गया, मीन्स स्टॉप हो गया। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट, मीन्स फर्स्ट यू विल टेक द इनपुट, देन प्रोसेसिंग, देन आउटपुट। ओके, तो यहां पर क्या होगा? आपका सीक्वेंशियल मैनर में आपकी एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन जो है, एक के बाद एक स्टेप जो है कंप्लीट होता जाएगा लीनियर फैशन में। ओके, अब सूडो कोड यहां पर देखते हैं। सूडो कोड में क्या किया मैंने? देखिए यहां पर मैंने इनपुट कीवर्ड यूज करा। अब इनपुट कीवर्ड किस लिए यूज हो रहा है? टू रीड द डेटा। ओके, तो डेटा रीड करने के लिए मैंने लिखा इनपुट ए, इनपुट बी। और प्रोसेसिंग के लिए यहां पर हमने कंप्यूट कीवर्ड लिखा है, कंप्यूट एस इक्वल टू ए प्लस बी। आफ्टर दैट यू विल प्रिंट द रिजल्ट। ओके, आपने प्रिंट क्या करा दिया? एस करा दिया। तो आपने देखा कि इसमें इस वाले प्रोग्राम में हमने क्या करा? दो नंबर्स को ऐड किया और हमने इसके दोनों मेथड्स देखे, फ्लो चार्ट के थ्रू भी और सूडो कोड के थ्रू भी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखते हैं। अब आपने देखा यहाँ पर कि मुझे क्या करना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। अब मैंने इसमें क्या करा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी फाइंड करा है और मैंने साथ में पेरीमीटर भी फाइंड करा है।
तो अब एक चीज यहाँ पर मैंने क्या चेंज करी है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग टू डिफरेंट पैरेललोग्राम फॉर इनपुटिंग द लेंथ एंड ब्रेड्थ, मैंने उन दोनों को एक ही पैरेललोग्राम में दिखा दिया है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मल्टीपल इनपुटिंग हम सिंगल बॉक्स में भी शो कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट किया, देन रीड करा लेंथ एंड ब्रेड्थ। आफ्टर प्रोसेसिंग क्या हुई, प्रोसेसिंग में मैंने एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ लिख दिया। देन वी विल प्रिंट एरिया। After printing the area, now next processing we want कि I want to find the perimeter also. So in the same flow chart मैंने यहाँ पर एक next processing ले ली कि perimeter एक variable ले लिया param करके and उसमें formula लगा दिया 2 into length plus breadth and then I want to display the perimeter, तो मैंने यहाँ पर print param लिख दिया and then stop. So in a single flow chart you can perform the multiple processing, okay, and pseudocode you can see here, input length, input breadth, then compute area is equal to length into breadth, then you will print the area. After that compute क्या करेंगे हम, perimeter, perimeter का formula लिख दिया and then print perimeter, okay. I hope कि आपको ये समझ में आ गया होगा और इसकी प्रैक्टिस करिए, मोर एंड मोर क्वेश्चंस करिए सीक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट के। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।